the last question from you. Sir, I'm asking about your daily routine. What is your daily routine? How you manage your all the things like teaching and like Islamic activities and your your Insta ID. You also manage like most of the thing, all the things. How do you manage and Taraweeh, all the things? Hmm, right. And when you So sleep and when you wake up. I'll be honest with you. I'll not be faking like other people who say that I am so much disciplined. I think I am not so much disciplined. That is something which is there in my checklist, which I have to get. I have to be disciplined so that I can be productive as well. But I would say the way I'm managing the things is hard for me because in like for 1 second I have to do something, the other second I have some other work to do. But I try to do the same thing which I mentioned, which I told Shiv and all of you. Time management. Even if I am not able to manage something, or even if I am not able to do something at exact time, uh, like if I decided I will read a book, I'll read a novel of mine from 12 to 1. If I am not able to do that at 12, no problem, I do it at 4. I take out some time for it. But yes, the most important thing is I take care of all the tasks which I have decided for myself, which I have thought of that I would do them. So this is something I am doing. It's really hard for me. LinkedIn I keep on writing. Like you must have seen my status, all of you, कि वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ. पीपल अप्रिशिएट मी सो मच फॉर दैट कि आपने ये कैसे लिख दिया, इतने अच्छे थॉट्स कैसे आते हैं आपके माइंड में. सो आई यू नो give myself the me time as well, in which I think a lot. I am proud to say I am an overthinker, which is not harming me at all. This overthinking is for good reason, right? Sir, but my overthink harm me a lot. That is something you have to stop. There is no, I would say, medicine you can take to stop that. But yes, the only thing you can do is you can do meditation, which is very important, and you are into religion as well. It will be better with the time, I guess. Sir, whenever I pray Salah, all the things come in my mind. Like I have to do this work, that work, these kind of tasks. I have to talk to them. These kind of activities. Let me tell you, let me give you the answer why this is happening with you. Because you are thinking you are very, I would say, far from your dream, from achieving that dream. That's why you want to do everything with so much hurry, Yes, right? sir. तो इसका आंसर मुझे पता था यही होगा, आप यस बोलोगे. देखो, आप ना आगे हो ना पीछे हो. यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी. जल्दबाजी में काम खराब होगा. जल्दी का काम शैतान का होता है, हम लोगों ने सबने सुना है. जल्दबाजी आपको करनी ही नहीं है. देर आर सम थिंग्स यू हैव टू से अ क्लियर नो टू. कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको एक क्लियर नो बोलना होता है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ़ आई थिंक और ओवर थिंक अबाउट माई बिजनेस कि इतना ग्रो नहीं हो पा रहा, इतना नहीं हो पा रहा, आई थिंक ओवर थिंकिंग इन दिस मैटर वोंट हेल्प सो मच. आई एम डूइंग ऑल द थिंग्स. आई एम एग्जैक्टली वेयर आई नीड टू बी, and everything will come to me at the right time. I'll get to my place at the right time. प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत जल्दबाजी में सब चीज़ें खराब कर लोगे. कुछ भी चीज़ अच्छे से कर भी नहीं पाओगे. जल्दबाजी में लोग मल्टीटास्किंग करना स्टार्ट करते हैं. साइंस क्या बोलती है? मल्टीटास्किंग इज नेवर अ गुड ऑप्शन, बट वी फ्लॉन्ट अबाउट इट कि वी आर अ मल्टीटास्कर. मल्टीटास्किंग इज नेवर अ गुड ऑप्शन, इज नेवर समथिंग यू कैन डू. यू माइट थिंक कि दो काम हमने एक बारी में कर लिए, इससे अच्छा क्या है. वी माइट कॉल इट प्रोडक्टिविटी. नो, इट इज़ नॉट प्रोडक्टिविटी एट ऑल. So it कभी कभार तो hampers the quality of the work. सी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग इसे क्वालिटी मान लेते हैं. आपने दो काम एक साथ कर लिए, कभी कभार तुक्का लग गया, बाय फ्लूक इट हैपेंड कि आपके दोनों काम बहुत अच्छे हुए. बट द थिंग इज, उन दोनों कामों में से कौन सी ऐसी लर्निंग थी, या दोनों में कौन कौन सी ऐसी लर्निंग थी जो आपके माइंड में रह पाई? नहीं रह पाई. क्यों? क्योंकि वहाँ पे देर वॉज सो मच, यू नो
गोइंग ऑन कि ये भी करना है वो भी करना है, टू थिंग्स यू आर डूइंग एट द सेम टाइम। और वो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो करते हुए हम कुछ करते हुए सीखते हैं। सो इसीलिए एक चीज़ पे एक टाइम, या एक टाइम पर एक चीज़ करनी चाहिए हमें। Yes, sir, you are right. Not according to me, it is not something which, which is coming from my brain only. It is something which I read somewhere and then I experienced it as well. ऐसे ही होता है, पहले हम कुछ रीड करते हैं, फिर एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वो जब रियल टाइम में आपको दिखता है कि हाँ इफेक्टिव है आपके लिए, तो आप फॉलो करते हो, फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे पकड़ के आगे चलते हो। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी, जहाँ पे आप हो वहाँ पे हो। इट डज़ नॉट मीन यू बिकम कंप्लासेंट कि हाँ काफ़ी है जितना मेरे पास है, नॉट एट ऑल। मैं रात को 3 बजे भी बैठ के काम कर रहा होता हूँ काफ़ी बार, रात को 2 बजे भी। इफ़ आई बिकम कंप्लासेंट, आई विल नॉट बी एबल टू ग्रो माई बिजनेस, आई विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो कंप्लासेंट नहीं होना है, ये बहुत थिक लाइन है इसके बीच में, आई वुड से बहुत थिन लाइन है, सॉरी बहुत थिन लाइन है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कंप्लासेंट हो जाओ, कंप्लासेंट मत होना कि बस इतना काफ़ी है, नो। काम करते रहो, हर चीज़ आपके पास सही टाइम पे आएगी अगर आपने अच्छी तरह से हर चीज़ करी है। कंप्लीशन पे ध्यान दो, कंप्लीशन पे, परफेक्शन पे, कंप्लीशन परफेक्शन, कंप्लीशन परफेक्शन, बस। परफेक्शन मिलेगी भी नहीं काफ़ी बार, क्योंकि परफेक्शन नहीं मिलती है। परफेक्शन इज इट सेल्फ, आई वुड से अ मिथ विच मैनी पीपल से, कि परफेक्शन एक मिथ होती है। आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा बहुत परफेक्टली आपने कुछ कर दिया, दैट माइट नॉट बी डन परफेक्टली। दैट आई वुड से कि बस आपको अपना बेस्ट देना है, ओके। तो उस पर थोड़ा ध्यान दो, भागो मत, भागोगे तो भगा दिए जाओगे। लाइक दिस इज समथिंग विच इज कमिंग टू माई माइंड। लिटरली भागोगे तो भगा दिए जाओगे। जॉब में भी भागोगे ना तो भगा दिए जाओगे। जल्दबाजी में चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। बहुत आराम से Yes. करो, बहुत आराम से।